Personal development skills are qualities and abilities that help you grow both personally and professionally. In other words, they are skills that help you nurture your personal development. Understanding and improving these skills can help you maximize your potential. This process is also known as self-development or personal growth. To know more about the same, Vishwa Kendra, in joint collaboration with the Department of Social Work, Aditi Mahavidyalaya, University of Delhi, organized a one-day training on how to build personal and professional personality under Project LEAD, Leadership through Education, Action and Determination. A very good evening to one and all. I, Mukta Bhardwaj, Program Officer, Vishwa Kendra. I want to welcome I want to give my heartiest welcome to our esteemed faculty, Mr. Surinder Narayan Ahuja, sir. We welcome you, sir, for today's session 15 of Project LEAD on behalf of all the team members of Project LEAD, that is Team VYK and Team Aditi Mahavidyalaya. I also want to welcome Professor Mamta Sharma ma'am, Principal Aditi Mahavidyalaya, Dr. Sunita Behmani ma'am, HOD, Department of Social Work, Aditi Mahavidyalaya, Mr. Uday Shankar Singh sir, Chief Controller, Vishwa Kendra, Mr. Ajit Kumar Rai sir, Senior Officer, Sustainability and Development, Vishwa Kendra, and my co-colleague on this platform, Dr. Manju Goyal ma'am, and Miss Manisha Pal ma'am, and all my VYK team members, and Anand Kumarji for today's session. He is also going to assist me in this session. Thank you, Anandji. And I want to welcome all my team members of Aditi Mahavidyalaya and Vishwa Kendra. We welcome you from all the team members of Project LEAD. And rest, but जिनकी हम सबसे ज्यादा चर्चा करें तो our loved participants, जो हमें हमेशा encourage करते हैं. And I really feel fortunate to share कि हम बीच बीच में जब follow up calls करते हैं अपने participants को, तो सर ऐसे ऐसे लोग हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो कहीं के डायरेक्टर भी हैं, जो किसी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल भी हैं. तो मुझे लगता है कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसकी गरिमा, इसकी शोभा इतनी ज्यादा उन्होंने बढ़ाई है, जिनको अभी हम नहीं देख पा रहे, लेकिन लास्ट के 2 सेशंस में हम सभी को देख पाएंगे. सबका वीडियो ऑन करवाने की कोशिश करेंगे ताकि हम उनसे भी सुन पाए. सो ऑन wholeheartedly I want to welcome one and all who are present here for session 15 of Project LEAD on today's session. The last session was on personality, dimensions of personality, attitude and motivation, which is conducted by Surinder Ahuja sir. And the role and responsibility was taken in this session, Dr. Manju Goyal, who gave the welcome note, and then recap of the previous session by Dr. Manju Goyal. And the session was taken by the sir, Mr. Surinder Ahuja, and question and answer session was taken up by Mr. Anand Kumar, and vote of thanks by Dr. Sunita Behmani. The main learning of the session was the concept of personality and its dimension, and the types of personality, and motivation and attitude is also covered in this session. And in this, sir has told us about the personality is a word which is very difficult to express in words. The word personality derived from a Latin word persona, and the persona is basically referred as a theatrical mask worn by performers to either project different roles or hide their identities. Sir have explained these themes, this topic, with many pictures, many attractive pictures, and by sharing lots of stories which itself make very easy to define the topics. Personality is basically made up of the characteristic pattern of thoughts, feelings, and behavior that makes a person unique. And then we have understood about the dimensions of personality. So there are 5 categories, or we can say 5 dimensions of personality. Conscientiousness, where it is considered as a careful, dependable, self-disciplined person.
agreeableness, courteous, good nature, empathy, caring, and neuroticism, where anxious, hostile, and depressed person, openness to experience, the person is very sensitive, flexible, creative, and curious. And the fifth one is extroversion, outgoing, talkative, sociable, and assertive. Sir have explained these 5 categories with lots of examples, and sir have told that how these categories define the different dimensions of the personality. Then there are 5 things which makes personality and which is very important when we talks about the personality. The number one is thoughts. Thoughts somewhere determine our actions, and actions determines our habits, and habit determines our characters, and then after the character build up our personality. So these are the links which makes the personality, the concept of personality, or any person's personality. Then there are different types of personality. There are mainly 4 types of personality. Number one is dominance, then influences personality, cautious personality, and steady personality. So there, sir have defined the 4 characters, characteristics of these personality. Number one is a dominant personality, where the characteristics were like makes decisions quickly. The person who belongs to this personality, they have a quality like they can make decision quickly and is not afraid of risk and conflicts, likes a competitive atmosphere, and sets their own rules. In the second one personality, which is called influencing personality, there the characteristics are like establish connections with others quickly, and finder is easy to express feelings and enjoys the spotlight. So that person is characteristics are defines a person who considered as a influencing personality. The third one is a cautious personality. Cautious personality contents like complete task accurately, plan things carefully, expects a lot of themselves, and has an analytical mindset. And the last one is steady personality, where characteristics are like likes familiar process, listen carefully and shows understanding, wants to be supportive, wants to maintain peace. In these characteristics, sir have explained very beautifully about all the characteristics with lots of examples and the stories behind these characteristics. Then after that, we have covered the concept and role of motivation and attitudes in framing the personality. So ability is basically what you are capable of doing, and the motivation which determines what you do, and the attitude determines how well you do it. So after that, sir have covered the motivation. Motivation is basically, it is the set of reasons that determine how you engage in a particular behavior, and it is kind of act of process of giving someone a reason for doing something, and it is also with change according to the time and situation. So we cannot say that motivation is a particular, it is not a consistent, it is changing over the time, and it depends on the situation also. So there are types of motivation, like 3 types of motivation. uh, Number one is intrinsic motivation, which consists like passion, interest, curiosity, enjoyment, purpose, and fun. Extrinsic motivation is basically which we get from the outside, which we get as a rewards like money, praise, awards, punishment, grade, and rewards. And the third one is mix up of both motivation, like intrinsic and extrinsic motivation, where sir had given the example of this session. Like in this session we are getting the intrinsic as well as extrinsic motivation, where is a academic success as well as relationship and career success, where we are getting the, where we are learning something, and also we are getting the certificates for this course. So this is basically the intrinsic and extrinsic motivation. So there are different ways to motivate ourselves also. Like we can create incentive for ourselves, where we can stay positive, we can generate new ideas,
and we can establish good habits, we can set some new goals for our life, and we can focus on our dreams and build on success. So these are the ways how we can keep motivating ourselves. After that, we have covered the third point is attitude. Attitude is basically how you think and whether you lean towards the optimistic or pessimistic. So with a very beautiful or meaningful stories, he explained that how we can keep our attitude in an optimistic manner, not in a pessimistic manner. So there was a story which was shared by the sir. Then attitude is basically constituted by these 4 points. Like number one is belief and our behavior, how we perceive, and what are the emotions. These things basically makes our attitude, that how our attitude can be. So this session was ended up with a very meaningful quote, like, I made money one day, I said, you are just a piece of paper. And Money smiled and said, of course, I am a piece of paper, but I haven't seen a dustbin yet in my life. So that's the attitude through which we learn that what is attitude and how we should keep our attitude in an optimistic manner. आज की यात्रा हम शुरू करते हैं हाउ टू बिल्ड पर्सनल पर्सनालिटी एज वेल एज प्रोफेशनल पर्सनालिटी। जैसा कि आप सबको विदित है, पर्सनालिटी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और हम जीवन के आखिरी दिन तक नहीं कह पाएंगे ओ मैंने अपने विचारों के अनुसार पर्सनालिटी बना ली है। नहीं, ये बदलती जाती है समय और स्थिति के अनुसार, विचारों के अनुसार हमारी रोज पर्सनालिटी निखरती है। कल तक जो आपकी पर्सनालिटी थी, आज कल से फर्क होगी, लिखवा लो मेरे से। हाँ, मैं आज आपके साथ, सबके साथ, आपके साथ और पार्टिसिपेंट के साथ कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स डिस्कस करूंगा। कहते हैं ना कि इन चीजें ये मिनिमम है और ये अनिवार्य है, इन सबके मिश्रण से पर्सनालिटी बनती है। तो वंस अगेन मैंने पूरी कोशिश की है to simplify the subject as much as possible. और बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। और एक कहावत है, यात्रा शुरू होती है पर्सनल पर्सनालिटी से और यहां से हम आगे बढ़ते हैं प्रोफेशनल पर्सनालिटी। तो these are both two sides of the same coin. तो इसलिए सबसे पहले मैं वही कन्वेंशनल रिवीजन करूंगा अपनी यात्रा का। I would like to thank first and foremost the participants. मैंने पहले दिन उनको नाम लिया था आत्मा। ये सब आत्मा है, ये ना होती तो ना हमको कोई सुनने वाला होता, ना आपको कोई अप्रिशिएट करने वाला हो। तो we are thankful to all the participants who consistently attended these programs under the banner hard work of two big entities, Vishwa Yuva Kendra team and Aditi Mahavidyalaya team. And I think I will request all the participants to clap for all these two hardworking, sincere people who have made this program as a very big success. And as they have repeatedly said just now, our program for today is how to build personal and professional personality. And as I said, my endeavor will be to make it as simple possible. So let us start the yatra. This is what we want. We have a personal personality and we want to make a professional personality. And as the saying is, मैंने basic 4 elements लिए, physical, social, mental और emotional.
ये हमारी जिंदगी के 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर हमारी जिंदगी खड़ी होती है और इसी से ही पर्सनालिटी। तो शुरुआत करते हैं फिजिकल से। जैसा कि ये चित्र बताता है, प्रोफेशनल ग्रोथ स्टार्ट्स विद पर्सनल, फाउंडेशन इज पर्सनल ग्रोथ। और यहां पे समथिंग विच आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू इज, हमारे शरीर के लिए इसको फुल्ली इफेक्टिव रहे, काम कर सके, चलता फिरता रहे, फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट। And it is not only for men, it is men and women, girls and boys both. यहां मैं आप लोगों से एक बड़ी स्पेशल इंफॉर्मेशन जो मेडिकल साइंस से शेयर करना चाहता हूं। ये एक एस्टैब्लिश्ड मेडिकल फैक्ट है, शरीर के किसी भी अंग का अगर हम प्रयोग करना छोड़ दें तो आपको सुन के अचंभा होगा, वो अंग काम करना छोड़ देता। इसका एक आपको एविडेंस देता हूं। आपने लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी से जरूर मिले होंगे। मान लो एक इंसान का एक बाजू का फ्रैक्चर हुआ और उसकी 4 आर्म में 4 हफ्ते का प्लास्टर लगा दिया गया। 4 हफ्ते के बाद जब प्लास्टर हटाया जाता है तो क्या उसकी बाजू काम करती है? नहीं, क्योंकि 4 हफ्ते से इन मसल्स ने कोई काम नहीं किया। तो इसलिए हमें रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाना पड़ता है, फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइज सीखनी पड़ती है, सो दैट वी कैन रिवाइव द फंक्शन ऑफ दिस आर्म। ये एक जीता जागता एविडेंस है। अगर आप चाहते हैं आपके शरीर के सारे अंग चलते फिरते रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम पूर्ण रूप से कर सकें, तो मेरा आप सबसे निवेदन है, बाकी सारी चीजों को आप छोड़ सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज को कभी मत छोड़ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, आधा घंटा करो, आइडियल इज 1 घंटा, और वो करो जो आपको अच्छा लगता है। आपको स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं, आपको सैर करनी अच्छी लगती है सुबह सुबह प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद, वो करो। आपको ट्रेडमिल अच्छी लगती है, वो करो। आपको एक्यूप्रेशर की एक्सरसाइजेस अच्छी लगती हैं, वो करो। बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं कितने बेनिफिट्स होते हैं। आपके कहने को तो यहाँ लिखा हुआ है 10 बेनिफिट्स। आपकी जो मानसिक स्थिति है, ब्रेन को पूरी फुल ऑक्सीजन मिल जाती है। आपका जो शरीर है एक पूरा संसार है, एक विश्व में जितनी फैसिलिटीज हैं सब इसके अंदर है। और एक और चीज बता दूं, जैसा आप सब लोग कोई ना कोई तो व्हीकल चलाते होंगे, चाहे मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, कार हो। जब आप अपने इस व्हीकल की सर्विस करवाते हो और सर्विस कराने के बाद जब चलाते हो तो आपको फर्क नजर आता है कि नहीं आता? यार अब तो गाड़ी बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ी स्मूथ चल रही है, इंजन की साउंड बड़ी क्लियर है। तो विजुअलाइज करो, जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हो तो आप अपनी सारी शरीर के अंगों की सर्विसिंग कर रही है। किडनी का फंक्शन इंप्रूव हो जाता है, लंग्स स्ट्रांग हो जाते हैं, हार्ट मसल्स को पूरा ब्लड ऑक्सीजन मिल जाता है, बोन्स तकड़ी हो जाती हैं, बोन्स के साथ जो मसल्स हैं उनके अंदर जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। मैं आपको अनगिनत फायदे गिनवा सकता हूं कि एक्सरसाइज करने के कितने फायदे हैं। आप मेरी एक भी बात मत मानो, पर मान लो आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करो, आप आज तक एक्सरसाइज नहीं करते हो, कल अवश्य सुबह उठ के केवल 10 मिनट एक्सरसाइज करना, फिर आप मुझे अपनी फीलिंग्स बताना। आर यू फीलिंग बेटर? आर यू फीलिंग गुड?
फिर आपकी इच्छा होगी नहीं 10 मिनट नहीं 15 मिनट करेंगे, तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, कैन आई डू मोर एक्सरसाइज। मैं आपको इतना बता सकता हूं, I became a sports person. I play badminton, played in 1954. And I kept on playing till 2017. 2017, till then I used to play badminton professionally with youngsters. But 2007, I gave up. But I did not give up exercise. I switched over to walking. And I used to walk 6 kilometers in a day. Then I gave up that. Then I bought a treadmill. Now with age, I have entered 80. Now I do treadmill every day for 1 hour. But now I cover 3.5 kilometers and I take 2-3 breaks at this age. But I love to do it. तो इन सबके बेनिफिट्स मैंने रीप किए हैं। इसी तरह ही आपको एक और चीज सुन के बड़ी खुशी होगी कि जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं, हाउ योर ब्रेन इज बेनिफिटेड। आपको खुशी होगी, इट इंप्रूव्स योर मेमोरी, इट इंप्रूव्स योर रिटेंशन पावर, इट इंप्रूव्स योर मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज। अनगिनत फायदे हैं। अब सोचो, जो फायदा आप 3 महीने 6 महीने के बाद एक दफा उठाते हैं जब आप अपना व्हीकल सर्विस कराते हैं, और अगर आप अपनी सर्विसिंग रोज करोगे तो ये शरीर फिट रहेगा कि नहीं रहेगा। सो दिस इज व्हाई वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स फॉर बिल्डिंग अप योर पर्सनालिटी इज फिजिकल एक्सरसाइज। बेटा आप मानोगे नहीं, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, रिगार्डलेस ऑफ योर एज, जब आप अपने स्पोर्ट्स एरिना में जाओगे तो आप एक बच्चे बन जाओगे। जिस तरह बच्चा एक खेल के मैदान में जाकर खुश होता है ना, वही हालत आपकी होगी रिगार्डलेस ऑफ योर एज। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर ए वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। प्लीज कीप ऑन डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। लेट अस कम टू द सेकंड फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी। अब इन लाइनों को सिर्फ पढ़ लो। और इसके बाद जो 2 शब्द है वो लिख लोगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। और वो सीक्रेट की फैक्टर क्या है? विनिंग एटीट्यूड। की फैक्टर फॉर एनहेंसिंग योर पर्सनैलिटी इज विनिंग एटीट्यूड। बस सिर्फ एक शब्द लिख लो, विनिंग एटीट्यूड। फिर मैं आपके साथ बातें करूंगा। आप में से कितने लोगों ने रेगुलरली वॉच किया है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति? ये प्रोग्राम देखा है? अब फिर से शुरू हो रहा है। चलिए मैं अब आपसे कुछ बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, लिखना बंद कर। अब बेटा ये फिर से शुरू हो रहा है। मैं आप लोगों को इतना कहूंगा, जब ये शुरू हो जाए इसे देखना अवश्य। क्यों देखना? 2 कारण बताता हूं। फर्स्टली, इट इज ए नॉलेजेबल प्रोग्राम। ही अमिताभ बच्चन आस्क क्वेश्चन, फिर ऑप्शंस देता है। जब हम एज ए व्यूअर इसे देख रहे होते हैं, हम भी तो कहते हैं ये उत्तर है। हम पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते? अब जब हमारा उत्तर ठीक होगा तो हम खुश होते हैं, जब गलत होता है तो कुछ नया सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता? ओह, दिस इज द राइट आंसर। डज इट नॉट इंक्रीज आवर नॉलेज? दूसरा, जब आप देखोगे फिर आपको लगेगा कि आपको कैसे मोटिवेशन मिलती है। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं और आपके 3-4 मिनट लूंगा। इस केबीसी प्रोग्राम में हर शुक्रवार को वो एक स्पेशल इंसान को बुलाते हैं। ए पर्सन हु हैज डन समथिंग यूनिक फॉर सेल्फ, फॉर सोसाइटी और फॉर द कंट्री। इन 3 पैरामीटर्स जो फुलफिल करता है उसे बुलाते हैं, और टाइटल उन्होंने लिखा हुआ है करमवीर।
मैं आपके साथ एक करमवीर की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। वो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, उसके साथ साथ सुनाता जाऊंगा और छोटी छोटी पिक्चर्स दिखाता जाऊंगा। एक फ्राइडे को वन फ्राइडे हॉट सीट पे करमवीर जो बैठी थी, उनका शुभ नाम है मिसेस अरुणिमा सिन्हा। When she was 20 years old, living in Lucknow, a sports girl, she was traveling from Lucknow to Delhi by a train. रास्ते में एक छोटे स्टेशन पे 4 लड़कों ने उनकी गोल्ड चेन खींचने की कोशिश की। She being a sports girl, she fought back. क्योंकि वो 4 लोग थे, उन चारों ने इस लड़की को फिजिकली उठाया और रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया। जब ये रेलवे ट्रैक पत्थरों पे गिरी तो इसकी एक टांग दूसरे ट्रैक पे थी। एक ट्रेन आई, उसने इसकी एक टांग को एम्प्यूट कर दिया। सारी रात पत्थरों पे पड़ी रही, किसी ने मदद नहीं की। टू कट इट शॉर्ट, ultimately next morning she was brought to All India Institute of Medical Sciences. यहाँ काफी महीने रहने के पश्चात, काफी ऑपरेशंस होने के पश्चात जब इनको डिस्चार्ज किया गया, ये रही पिक्चर। इनकी एक लेग एम्प्यूटेड थी, दूसरी टांग में रॉड थी और स्पाइनल कॉर्ड में 4 फ्रैक्चर्स थे। तो अरुणिमा कहती है, सर मैं जब हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि अगर भगवान ने मुझे बचाया है तो मेरे लिए कोई स्पेशल प्रोजेक्ट होगा। कहती है दूसरा विचार आया, कैन आई बिकम ए माउंटेनियर। और ये सीधी इंस्टीट्यूट से हिमालयन बेस पे गई जहां एवरेस्ट के लिए क्लाइंब करते हैं। वहां एक लेडी इंचार्ज थी, उसे जाके कहती है कि भाई ये मेरी फिजिकल कंडीशन है, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। इसका कॉन्फिडेंस देखते हुए उसने कहा आ जा, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। इस समय जब वो हॉट सीट पे बैठी थी, शी इज द फर्स्ट लेडी हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट विद क्रचेस। और जब ये हॉट सीट पे बैठी थी, she has already climbed 7 peaks of the world. और उनके एजेंडा में 5 पीक्स और हैं। कहती है अभी मैंने 5 और पीक्स चढ़नी है। अब मेरा आप सबसे प्रश्न है, did Arunima change her personality because of her physical fitness or because of her winning attitude? She had winning attitude. ये दूसरा बेटा फैक्टर जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया है, वो इसलिए किया है, आप जिस मर्जी हालात में हो, अपने आप को छोटा कभी मत समझना, अपने आप को कमजोर कभी मत समझना। एक दफा जो आप ठान लोगे वही आप कर पाओगे। अब इस समय जो मिसेस अरुणिमा सिन्हा, she was sitting with her husband. She was 30 plus now. तो कुछ भी जिंदगी में प्राप्त करने के लिए आपकी ट्रू पर्सनालिटी बनती है, एंड दैट इज विनिंग एटीट्यूड। कुछ भी कहो मैं सक्षम हूं और मैं ये कार्य कर सकता हूं और मैं करूंगा, और आप कर लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की यात्रा करते हैं। तीसरा फैक्टर क्या है? ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। ये सबसे क्रिटिकल फैक्टर है, और जैसा मैंने आपके साथ एक मुहावरा शेयर किया था, ए वेरी इंप्रेसिव पर्सन, वेरी स्मार्टली ड्रेस्ड अप, walks in and you are impressed till he opens his mouth. That means आपका जो पर्सनालिटी का गहना है वो है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में
मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स हैं. It is a sum total of knowledge of the subject on which you are speaking and the command of language which you are using. मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था 2 भाषाएं अति अनिवार्य है. एक इंग्लिश, so that you can be a good communicator throughout India and throughout world. और दूसरा अपनी रीजनल भाषा, ताकि आप अपने रीजन में अपनी भाषा में सरलता से बात कर सकें. ये सबसे बड़ा गहना है हमारी पर्सनालिटी का. इसलिए मैंने आपके साथ एक और चीज शेयर की थी. सबसे पहले हम लोगों ने किया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिर हमने किया था वर्बल कम्युनिकेशन. और जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया था, component of verbal is 35% and non-verbal component is 65%. जैसे ही हमारी पलकें खुलती हैं और जब तक हम सोते हैं, our body is non-verbally continuously communicating. अब इस फैक्टर्स को देखते हुए I want to emphasize 2 things. One, वर्बल में स्पीकिंग आता है और दूसरा पार्ट आता है लिसनिंग. और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, इस धरती पे मोर देन 99% ऑफ अस, हम सिर्फ बोलना चाहते हैं. हम चाहते हैं कोई हमारी बात सुन ले. और अगर एक्यूट शॉर्टेज है इस धरती पे, वो है सुनने वाले. और अगर आप एक अच्छे लिसनर बन जाओ, इट विल एनहेंस योर पर्सनालिटी. एज आई सेड, हर कोई आपको ढूंढेगा, चलो यार मुक्ता मैडम के पास चलते हैं, ये बातें बड़े ध्यान से सुनती है. और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब हम दूसरी की बात सुनते हैं, हम पूरी बात सुनते ही नहीं और सलाह देनी शुरू कर देते कि नहीं, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो. सुनने वाले की जो लेटेस्ट कला कल मैंने पढ़ी, जब आप किसी की बात सुन रहे हो, जब तक बोलने वाला सलाह ना मांगे, बिल्कुल सलाह मत देना, सिर्फ सुन लेना. जब आप दूसरे की बात केवल सुन लेते हो और एक शब्द नहीं बोलते, 90% तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. सोल्यूशन भी उसे पता हो, तो आपको सोल्यूशन बताने की जरूरत नहीं. So this is what is important, is listening. लेकिन यहाँ पे between non-verbal and speaking एक बहुत बड़ा डेंजर सिग्नल है. जीभा से हम कुछ कहते हैं और हमारा शरीर कुछ और कहता है. There is a mismatch between our verbal communication and non-verbal communication. तो इसलिए मैं आप सबको सलाह दूंगा, आप सबके पास एक बाबा है, उसका नाम है गूगल बाबा. और आज के जमाने में हर इंफॉर्मेशन गूगल बाबा के पास अवेलेबल है. जब कभी टाइम मिले तो गूगल बाबा के पास जाके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के चित्र देख के पढ़ना अवश्य है. कारण हो सकता है हम लोगों में कुछ ना कोई एक ऐसी हैबिट है अननोइंगली, जो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करती है और हमें उसका ज्ञान नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी के सामने खड़े हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, बट वी क्लोज आवर आर्म्स लाइक दिस. ये नेगेटिव है. हम सुनना भी चाहते हैं, पर बॉडी लैंग्वेज कह रही है जो मर्जी कह लो, मैं नहीं मानूंगा. तो इसलिए बेटा पढ़ना. अब आपके कार्य को आसान बनाने के लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ लेना. नॉन वर्बल कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना. facial expression, it makes a world of difference. That while you're speaking, what are your feelings and what are your emotions? They are written on your face. And if you are speaking and if you bring a smile on your face,
It changes the entire atmosphere. अगर हम बॉडी मूवमेंट है, आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे, तो सुनने वाले को खुशी होगी कि ये मेरी बात बड़े ध्यान से सुन रहा है। पर एक इंसान बोल रहा है, हम कहीं और देख रहे हैं, तो उसको क्या फीलिंग्स आती हैं? अरे मेरी बात सुन ही नहीं रहा। सो आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी की बात सुने तो आपका जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए बड़ा अलर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि सुस्त आ रही है, नींद आ रही है, आधे मन से बातें सुन रही हैं, तो बोलने वाले को खुशी नहीं मिलेगी। You should have a very alert, active posture when you are listening to somebody. Nodding. जब आप नॉड करते हो बिना बोले, तो आप कह रहे हो हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूं या समझ रही हूं। फिर देखिए और चीज, ये मैंने आपको बताया था, there is a social distance between two persons, more than two persons. मैंने डिस्टेंस के बारे में आपको सब कुछ बताया था। तो so that the next person standing next to you, उसमें इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि other person feels comfortable. By going too close, don't make the other person uncomfortable. Quality of voice. यहाँ मैंने आपके साथ एक सेंटेंस शेयर किया था. It is not important what you say. What is important? How we say. इसलिए आपकी जो आवाज की क्वालिटी है, इसकी बहुत वैल्यू है. So consider your tone and volume. और एक और बड़ी चीज, never raise your voice or get angry or show frustration while listening to others. ये बेटा छोटे छोटे टिप्स हैं, मैंने कहा आपको रिफ्रेश करवा दूं कि these things will enhance your personality, whether you are in personal life or even in your professional life. So these things do help. आगे चलते हैं. ये भी आपको याद आ जाएगा, मैंने आपके साथ ये किया था कि जब हम औरों की बात सुन रहे होते हैं तो हमारे शरीर में 5 चेंजेस आते हैं. लीनिंग फॉरवर्ड, स्माइलिंग, great. Now since you remember all these 5 points, please not only remember them but implement them in real life. This will enhance your personality, that you are a very good listener. और अंत में इसको कंक्लूड करने के लिए मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं. इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, समझना. There is very deep meaning behind these 2 words. ये आपका गहना है. इसके लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं इन 2 सेंटेंसेस के बारे में. अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था nobody is wrong on this world, on this earth. Everybody is right. और मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था. आमने सामने 2 लोग बैठे हैं, टेबल पे 6 लिखा हुआ है, एक को 6 नजर आ रहा है, एक को 9 नजर आ रहा है. तो 9 वाला समझता है ये पागल है, इसको समझ ही नहीं है, अंधा है, इसको 9 दिखाई नहीं दे रहा. और 6 वाला कहता है ये अंधा है, इसको समझ नहीं आता, 6 दिख रहा है. तो बताओ गलत कौन? कोई गलत नहीं. सो यहां से एक ज्ञान लेके चलो, एवरीबडी इज राइट. और फिर मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी. अब जो शब्द मैं बोल रहा हूं, लिखना चाहो तो लिख लेना. When you don't agree with somebody, गुस्सा करने की बजाय, उत्तेजित होने की बजाय, कड़ू शब्द कहने की बजाय, you can always say, I beg to differ. I respect your thoughts, but I beg to differ. Can I share my thoughts? और बेटा इस टेक्निक को
मैंने आप सबको एक प्रोफेशनल स्लोगन दिया था, मुझे याद है आपने जरूर लिखा होगा, नहीं लिखा हो तो आज लिख लो, एग्री टू डिसएग्री। फर्स्ट यू एग्री विद द पर्सन कि सर जो आप कह रहे हो बिल्कुल उचित है, पर मेरे विचार कुछ और है, क्या मैं अपने विचार प्रकट कर सकता हूँ? अच्छा हाँ सुना, फिर उसको बुरा नहीं लगेगा। अगर आप स्ट्रेट अवे डिसएग्री करोगे तो इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। दिस विल हेल्प यू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड दिस विल हेल्प यू इन पर्सनल लाइफ। एग्री टू डिसएग्री। तो जब दूसरे की बात सुनो, डोंट फील ऑफेंडेड, दैट इज हिज वे ऑफ थिंकिंग। एंड व्हेन यू आर लिसनिंग, डोंट गिव एनी एडवाइस, सिंपली लिसन। और जब आप बोलो, ऐसा ध्यान करो कि मेरे बोलने से किसी के मन को कोई ठेस तो नहीं पहुंच रही। So you can always change your words, और उसके लिए मैंने आप सबको एक टेक्निक शेयर की थी। अब मैं आपको सेंटेंस बताता हूं जो मैंने आप सबको कहा था लिखने को। Always think, speak or write in positive language for every proven negative situation. और मैंने आप सबको एग्जाम्पल्स दिए थे, कोई भी ऐसी नेगेटिव स्थिति नहीं है जिसका पॉजिटिव शब्द अवेलेबल ना हो। और मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे, एक दो दे देता हूं, याद कर ले तो। ही डाइड, नेगेटिव, सुनने में बुरा लगता है। ओ ही लेफ्ट फॉर इटर्नल जर्नी, सुनने में अच्छा लगता। आई एम अगली, ओ आई विश आई वाज हैंडसम। अब आप एक से आपका मन दुखी होगा और एक से आपका मन खुश होगा। आई हैव फेल्ड is negative. Oh no, yeah, this time I did not pass, but next time I will. तो आपको फीडबैक भी हमेशा पॉजिटिव। तो इन चीजों का ध्यान रखना। चलो आगे की यात्रा शुरू करते हैं। अब ये है एक और चीज, नंबर 4। ये भी मुझे पूरा याद है, ये पूरी एक्सरसाइज मैंने आपके साथ की थी, शायद एक वीडियो भी दिखाया था जहां तक मुझे याद है। Between confidence and knowledge, which word comes first? Knowledge leads to confidence. Confidence पहले कभी नहीं आता। अब क्योंकि knowledge leads to confidence, तो इसलिए अब हम आपके साथ कुछ और नई बातें करते हैं। और जैसा कहावत है, confidence comes with knowledge. और कल मैंने एक और बड़ी सुंदर चीज पढ़ी, तो मैंने स्लाइड में डाल दी, क्योंकि ये मैंने भी एक नई चीज सीखी, पर ये उचित थी। Knowledge breeds confidence. Confidence destroys fear. So destroy your fear. मान लो मैंने स्टेज पे खड़े होके 50-100 लोगों के आगे बोलना है, और अगर मुझे विषय के बारे में ज्ञान है तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। हाँ, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, चाहे आप मेरी एज में हो या आप स्टेज पे पहली दफा जा रहे हो, पहले जो 2-3 मिनट होते हैं, आप सब लोगों ने एक शब्द सुना हुआ है, बटरफ्लाईज। पेट में बटरफ्लाईज रखती हैं, जिसको डर कहते हैं। ये पहले 2-3-4 मोमेंट सबकी लाइफ में आते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द एज एंड एक्सपीरियंस। बट क्योंकि आपको टॉपिक आता है, आप अच्छी तरह, आपका ज्ञान है, और एक दफा आप बोलना शुरू कर देते हो, तो वो बटरफ्लाईज एवोपोरेट हो। और दूसरा एक चीज का और ज्ञान रखना, प्रैक्टिस बेटा, कोई भी कार्य जब आप पहली दफा करोगे, यू कैन नेवर बी वन ऑफ द बेस्ट। ऑलवेज डू रिहर्सल्स एट होम, रिगार्डलेस ऑफ योर एज एंड एक्सपीरियंस। जब आप रिहर्सल्स करके जाके बोलोगे, यू विल स्पीक मच 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 बेटर। और आप सबके अंदर एक ही इच्छा होनी चाहिए, कैन आई बी बेटर देन yesterday in terms of knowledge. अब यहाँ पे हम लोगों का सबका परसेप्शन है, नॉलेज का अर्थ है पढ़ना। मैं आज आपके साथ कुछ नया शेयर करना चाहता हूँ। नॉलेज हमें कितने सोर्सेज से मिल सकती है। एजुकेशन तो है ही, बुक्स तो पढ़ोगे,
लेकिन आप टीवी चैनल देख रहे हो, चाहे मैंने अभी कहा केबीसी, आपने केबीसी देखा रिक्रिएशन के लिए, पर आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी. So that is source of knowledge. Let us say you are seeing a professional serial. मान लो जैसे आजकल बड़ा कॉमन है, एक आता है साईं बाबा. साईं बाबा का आप सीरियल रोज देखते हो, and you get one new learning in each episode. तो आपकी नॉलेज बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और आप उस नई लर्निंग को अडॉप्ट करते हो तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो गई. फिर हम रोज चैलेंजेस फेस करते हैं. कुछ चैलेंजेस की हम सॉल्व कर लेते हैं. जब हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कल को वही चैलेंज दोबारा आएगा तो हम फटाफट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है. So you can find many sources to enhance your knowledge. लेकिन उसके लिए एक critical ingredient है, and that ingredient is your desire to learn. ये मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को ये लिखने के लिए निवेदन किया था कि रोज कुछ ना कुछ सीखो. You must learn something new. अब यहाँ पे मैं एक और नई स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ. मेरा ख्याल से शायद मैं आपको पहले भी दी है, फिर भी आज अवश्य दूंगा सबके लिए. जिंदगी में जो भी करना, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए दैट आई विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन दैट फील्ड. एवरेज नहीं बनूंगा, और बेस्ट आप कभी नहीं बन पाओगे. एवरी डे यू विल फाइंड समथिंग टू इम्प्रूव, बट कीप ऑन इम्प्रूविंग. कोई भी कार्य करने लगना, चाहे आप पर्सनल कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, बी वन ऑफ द बेस्ट. अब इसका और दूसरा एक और कारण है, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, यहां मैं होल्ड कर रहा हूं. Now, how to become one of the best? अब मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, अच्छी लगे तो जल्दी से स्क्रिबल कर लेना. Try to learn something about everything. This is very critical from personality point of view. इसके अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा. बट दूसरा क्या लिखा है, जिस फील्ड में आप हो, if you want to be one of the best in that field, then learn everything about something. एक चीज में एक्सपर्ट हो, उसके बारे में जितना ज्यादा सीख सकते हो उतना इट विल बी बेनिफिशियल. यहां मैं आपके साथ एक और शेयर करता हूं. मान लो आप टीम लीडर, यू हैव ए टीम टू लीड. एक गोल्डन रूल है, हमेशा याद रखना, इफ योर नॉलेज इज नॉट हायर देन योर टीम पार्टिसिपेंट्स, दे विल नेवर रिस्पेक्ट यू. वो हमेशा कोई ना कोई बहाने ढूंढेंगे. देखिए, आपको आता है, और आपसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछेंगे, और अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो आजकल की जनरेशन तो बड़ी फास्ट कहती है, सर आपको ही नहीं आता तो हमें कहां से आ सकता. तो आपको एज ए लीडर, एज ए एल्डर, ये भी एक जरूरत है. और प्रोफेशनली जब आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगे, एवरीबडी विल रिस्पेक्ट यू एंड यू विल बी इन ग्रेट डिमांड. और इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, और वो था, रोज सुबह उठो, अपने आप से सवाल पूछो, व्हाट डिड आई लर्न टुडे. या सोते समय पूछ लो, वो तो पूरा दिन अभी है, सुबह नहीं. एंड नेवर स्टॉप लर्निंग. और जो असली चीज मैंने आपको बताई थी, इन दोनों चीजों का फायदा तब है जब आप लर्निंग को अडॉप्ट कर लेते, मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ. Because that is why they say learning is adopting. चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं. फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिफ्थ क्या है?
ये मैंने आपसे लास्ट मीटिंग में भी डिस्कस किया था, लास्ट सैटरडे, आज फिर से कर रहा हूं। बी योरसेल्फ, नेवर लूज योर इंडिविजुअलिटी। और इसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई थी रिमोट कंट्रोल की। मुझे याद है, आप सबको याद आ गया होगा। Never give anyone else the remote control of your life. Only you have the power to change your channel. जब आप दुनिया को रिमोट कंट्रोल दे देते हो, कोई भी आपको 2 मिनट में रुला सकता है। कहता अच्छा मैं तो अभी हंसा देता हूं, because he knows how to tickle your spawn so that he can change your thoughts. जैसे हमें कोई अप्रिशिएट करता है तो हम खुश हो जाते हैं, हमें कोई क्रिटिसाइज करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब हमने रिमोट कंट्रोल औरों को दिया हुआ है। सपोजिंग whatever you have done, as per your capability, you have done the best. Now others criticize or appreciate should not make any difference to you. You have the self-satisfaction, I have done it. Yes, there is a scope to improve. I will try to do it better than today, tomorrow. That desire you all must have. And that is why they say, never give your remote control to others. यहाँ पे एक saying है, don't give your life remote control to anyone. Anyone. I'm sure you know this personality. Particularly, he emphasized when it comes to your emotions. As I said, they make you happy or they make you sad. Nobody can make you happy, nobody can make you sad. It is their thinking, not your thinking. So this is also very important. Maintain your individuality and have self-confidence. जो थोड़ी देर पहले मैंने एक और शब्द यूज किया था, winning attitude. Whatever I am the best. अब एक और छोटा सा नया, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया। प्रोफेशनली और इवन इन पर्सनल लाइफ हमें एक और स्किल चाहिए, और उस कला का नाम है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। दूसरों से बातें करने आना। अब यहां मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, शायद आपको नहीं लगे, ज्ञान आपके पास है, but way of expression शायद आपको नया लगे, and I'll request all of you and the participants to read it. That's all. I won't utter a word. पहले लेफ्ट साइड पढ़ना, फिर राइट साइड पढ़ना, या दोनों वन बाय वन पढ़ना। चलो अब मेरी बातें सुनो, टाइम कम है हमारे पास, अब सारे सुनो बेटा। मैं आप सबके पास वापस आ रहा हूं, अब सुनो सारे, लिखना बंद कर दो बेटा। पहला क्वेश्चन होता है, स्कूल ले जा रहा हूं, इसको कहते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर इन दोनों में से एक शब्द होता है, यस और नो। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। कोई भी परिस्थिति है, आप एक पार्टी पे जा रहे हो, आपने अपने मन की बड़ी सुंदर ड्रेस पहनी है, और आप जाके अपने भाई बहन माँ किसी से पूछते हो, मामा एम आई लुकिंग गुड? शी सेड नो। अब क्या करना? बिकॉज यू हैव आस्क्ड ए क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। तो जहां उन्होंने ना कहा, आपने दीवार पे माथा मार दिया कि नहीं कर दिया? आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है बाहर निकलने का। तो यहां बेटा एक चीज सारे याद रखना, ये मैं तुम्हें प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के हिसाब से बता रहा हूं। जिंदगी में कभी भी
ओपन एंडेड क्वेश्चन मत पूछना। अब होता, सॉरी, क्लोज्ड एंडेड, माय अपॉलॉजीज, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन मत पूछना जिसका उत्तर हाँ या ना हो। दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन के 5 गुरु हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ। इन 5 शब्दों से जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनको ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब मान लो आपने पार्टी की ड्रेस पहनी, आप अपनी तरफ से सबसे अच्छी ड्रेस पहन के आए। अब आपने जाके माँ से, माँ हाउ आई एम लुकिंग, शी कांट से नो। शी सेज कि बेटा तेरी ड्रेस तो बहुत अच्छी है बट लिपस्टिक मैच नहीं करती, इसका थोड़ा सा शेड बदल दे, या कुछ एक और छोटी सी बात बता दे। बट देन यू हैव ए रीजन टू एक्सप्लेन, माँ ये जो मैंने लिपस्टिक लगाई है ना, ये लेटेस्ट शेड है और ये आज की क्रेज है और ये इसके साथ मैच करती है। कहती है अच्छा तू ज्यादा जानती है तो मान लो। तो इसमें यू हैव ए सिचुएशन टू एक्सप्लेन योरसेल्फ एंड यू हैव ए सिचुएशन टू डिस्कस द आंसर। तो कन्वर्सेशन जो होती है वो हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन से होती है, क्लोज एंडेड से कभी नहीं होती। अब तीसरा क्वेश्चन जो था पूछा जाता है वो थोड़ा लाइफ का बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप में मेरे सामने आए, मैंने कहा यार आज तुम सुंदर नहीं लग रहे। अच्छा, क्या मैंने कपड़े खराब पहने हुए हैं? यू गो इनटू सेल्फ डिफेंस। या मैंने आज ठीक से शेव नहीं की। नेवर गो इन सेल्फ डिफेंस। इसको रिफ्लेक्टिव कर सकते हो। रिफ्लेक्टिव क्या होता है? उनके प्रश्न को, उनकी स्टेटमेंट को प्रश्न में परिवर्तित कर देते हो। मैंने अगर आपको ठीक समझा है, आई एम नॉट लुकिंग एज स्मार्ट एज आई लुक एवरी डे, इज इट ट्रू? अब किसको जवाब देना पड़ेगा? जस्टिफाई करना पड़ेगा उसे, तुम्हें जस्टिफाई नहीं करना। इसको बेटा कहते हैं रिफ्लेक्टिव। इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सबके साथ करना चाहता था, यू मस्ट नो हाउ टू यूज क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, how to use open-ended question and how to use reflective question. Reflective question का आंसर है, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो सेल्फ डिफेंस में मत जाना। इंस्टेड उनकी स्टेटमेंट को प्रश्न में परिवर्तित करके उन्हीं को ही कहना सर आप बताओ। इसको रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। और जैसा मैं वापस जा रहा हूं स्लाइड पे, यहां आप सबने पढ़ा कन्वर्सेशन के लिए क्या चाहिए? आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, दैट मेक्स ए कन्वर्सेशन। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दूं। पढ़ते जाओ, मैं बोलूंगा नहीं। और अंत में कन्वर्सेशन को बड़ा प्रोफेशनली अंत करना। जब हम अपनी वार्तालाप पूरी कर लेते हैं, किसी के साथ कन्वर्सेशन कर लेते हैं, तो क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। This is called courteous departure. अब आते हैं अगली चीज जिस पे हम डिस्कस करेंगे, वो ज्यादा काम आती है प्रोफेशनली, और वो 7वां पॉइंट है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का अर्थ होता है you are communicating
verbally or non-verbally, face-to-face exchange of thoughts, ideas, feelings, and emotions between two or more people. ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आती है. अब इंटरपर्सनल स्किल्स आप तभी कर पाओगे when your knowledge horizon is very wide, very vast. तभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्लाइड दिखाई थी. You must have a knowledge of everything, maybe little bit, but you must have extensive knowledge in one field. So for interpersonal skills, it is very important. मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ. ये इंटरपर्सनल स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है. मान लो you are in a particular profession. Let us say many of you are in teaching job. One of your students, you are particularly teaching one topic, but your student has a question related to that topic which is totally different. Now, you want to win that student. He's a good, brilliant student. He's asking a sensible question. One way is, okay, young man, I have noted your question. It is important, but can I answer it later? Will he feel good? And the second art is, if you have knowledge of that topic, you can say, I'll give you in 2 sentences the answer now. But after the class, so that we do not deviate from the main topic, once I complete this topic, please do come to me. I'll give you a detailed answer. So the other person gets a feeling. जैसे मैं मार्केटिंग में था. मान लो मुक्ता मैडम मेरी क्लाइंट है. मैं इनके पास गया और मैं इनसे वार्तालाप करना चाहता हूँ. ये कहती हैं, आहूजा, what are your opinion about current politics? अभी जो recent election हुए. And I hate politics. मैं कहता हूँ, मैडम, I hate politics. Sports की बात करें. Will she feel like it? No, I have no choice. I have to discuss with her politics. And my next client is Manju Goyal. I go to Manju. She says, oh, Manju loves football. She says, oh, Hamza, आज ना फुटबॉल का शाम को मैच है. मैंने कहा, मैडम, I hate football. कबड्डी की बात करें. She says, I hate kabaddi. So will you be able to develop relations? Interpersonal skills का अर्थ होता है building relations with others. और हम हमेशा औरों के साथ relations कैसे बनाते हैं? जब उनके साथ समय व्यतीत करते हैं. जब हम उनके साथ समय व्यतीत करते हैं तो आपस में बातें करते हैं. तो नॉर्मली हम किस टॉपिक पे बातें करते हैं? जिसमें क्लाइंट इंटरेस्टेड, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं. But if I have to build up my relations with my client, I must have a knowledge horizon of every topic so that I can discuss on any topic of their choice. That is why interpersonal skills are. तो ऑफिस में ऐसी सिचुएशंस आती हैं. अब मैं आपको प्रोफेशनल टिप्स देता हूँ. This was explaining you what is interpersonal skills. Then you keep on reading. I did not speak. We must match our verbal communication versus non-verbal communication. Listening skills, I have discussed in detail. You have to be a very good listener to develop interpersonal skills. चौथा, negotiation का दूसरा शब्द कहलाता है win-win, where both are winners, not one person. That is called successful negotiation. When we have difference of opinion, what we call a problem, our endeavor will be find a solution, not win each other's argument. Whenever we meet,
If there is a problem, accept the problem. Put all your energy in finding out what is the solution. That is called decision making. ये वही चीज है जो मैंने आपको कही. I respect and appreciate your thoughts, but I beg to differ. Can I share my thought? उसको assertiveness कहते हैं. और कभी-कभी लाइफ में when you are elder, as a mother, as a sister, or as a wife, sometimes you have to be assertive to tell the other person who is not understanding the current situation, बेटा अभी ऐसा कर लो, अगर ये ठीक ना हो तो फिर अपनी मर्जी से कर ले. That is where assertiveness comes. अब आ जाओ मैं आपके साथ 8वां पार्ट करूं. ड्रेस कोड. ड्रेस कोड के बारे में पहले मैं आप लोगों को ब्रीफ में बता दूं. बेटा पार्टिसिपेंट्स ये बड़ी ध्यान से सुनना बेटा. एक शब्द है ब्यूटी, हैंडसम. Nobody is beautiful on this earth and nobody is ugly on this earth. As the saying is, beauty lies in the eyes of the beholder. तो सबसे पहले हम सबको एक बात माननी पड़ेगी कि भगवान ने हमें जैसा शरीर दिया है, जैसा रंग दिया है, ये सबसे उत्तम है. और अपने आप को हमेशा कहो, I am the most handsome or I am the most beautiful person on this earth. अब यहाँ पे एक चीज सच्ची है और निर्भर करती है, वो है कि जैसे हम इस शरीर को चौगा पहनाते हैं, इसकी ब्यूटी को खराब कर सकते हैं या एनहेंस कर सकते हैं. इसलिए आज मैं आपके साथ एक बड़ी छोटी सी चीज शेयर करूंगा. It makes a lot of difference what kind of dress code you are putting on. जब ड्रेस कोड पहने, यहाँ पे एक बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन आता, कौन सा रंग पहनना चाहिए. जो मैंने लाइफ में सीखा है मैं आपको बता सकता हूँ. पहला रूल जो मैंने सीखा, many of us may not be financially very sound, but still do you want to put on best of the branded clothes within your budget? उसका रास्ता ये है, और ये कड़वा सच है, सेल जरूर लगती है हर साल. जब 70% की सेल हो, ब्रांडेड बजट के हिसाब, अपने बजट के हिसाब से चीजें खरीद लो. जब नॉर्मल रेट पे आ जाए मतलब. जब आप कपड़े खरीदते हो, एक चीज का और ध्यान रखना है, कोशिश करो to buy clothes during the daytime when there is sunlight. हर दुकानदार ने खूब सारी फ्लड लाइट्स लगाई होती हैं. उस लाइट में कलर मत देखो. If you can take out the cloth in sunlight, अगर आपका कपड़े का रंग सूर्य की रोशनी से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ब्राइट हो रहा है, that will enhance your personality. और आपको अब देखोगे तो पता लगेगा, बहुत सारे ऐसे रंग हैं which absorb light. जब वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी को डैम्पन करते हैं. Now keeping in view, let us say I am a person, God has blessed me with dark skin. और ऊपर से मैं डार्क क्लोथ्स पहन के जिनकी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, am I enhancing my personality or suppressing my personality? तो इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है. It depends on your choice of right type of clothes, right colors. और ये याद रख लेना, कोई भी रंग जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस करेगा. And it makes lot of difference on your dress code. और दूसरा, सिचुएशन के हिसाब से अगर आप ड्रेस पहनोगे, then that adds to your personality also. If you are going to college, your dress code is different. You are going to party, your dress code is different. You are sitting at home watching a movie, your dress code is different. But इतना मैं आपको बता दूं, dress code is the critical part of your personality. अब सिर्फ 2-3 स्लाइड्स देख लो जल्दी से.
ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है. It is not necessary what one color may be going very well on the other person may not go well on you. So you have to decide what goes well on you. अब मैं आपके साथ लास्ट but very interesting and very important पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लू शेयर करने जा रहा हूं और उसका नाम है स्पिरिचुअल. दिस इज ए हिडन पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. और आपको मैं चीजें बताऊंगा, आपको पता होंगी बहुत सारी चीजें, फिर भी रिफ्रेश करा दूंगा. ये हमारा हिडन पार्ट है पर्सनालिटी का. पहले आपको कुछ दिखा दूं, फिर बातें करूंगा. ये शब्द सब आपने सुने हुए हैं. अब इसके आगे चलते हैं. बेटा, यहां सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं. रूल नंबर 1, हैव फेथ इन वन डेटी, रिस्पेक्ट ऑल. और अगर आप जॉइंट फैमिली में कभी रहे हो, यहाँ चाचा भी है, बुआ भी है, दादा भी है, दादी भी है, जितना स्नेह आपको अपने पिता से होता है, क्या उतना स्नेह चाचा के साथ होता है? नहीं होता. लेकिन प्यार आप सबसे करते हो. इसलिए रूल नंबर 1, एक इष्ट देव को मानो, आदर सबका करो, but sense of belonging to one. रूल 2, क्या आप उस इष्ट देव को जीवित मानते हो, मूर्ति मानते हो, या एक ओम मानते हो? ये आप पे निर्भर है. अगर आप अपने इष्ट देव को जीवित मानोगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं वो आपके साथ बातें करेंगे, आपके साथ 24 घंटे रहेंगे, आपके साथ चलेंगे. बट आपको वो सारी बातें करनी पड़ेंगी जो आप एक जीवित इंसान के साथ करते हो. एग्जाम्पल देता हूं. एक, मान लो उदय जी के घर में पिताजी आए गांव से. सुबह सुबह इनकी धर्मपत्नी ने चाय बनाई. तो सबसे पहले चाय किसको दोगे? पिताजी को. बड़े तो वही है. इसी तरह ही जब आप इष्ट देव को मानते हो, वो आपके साथ रहते हैं और सुबह सुबह चाय बनाते हो, उनको पिलाते ही नहीं. ठीक है या गलत है? गलत है. तो पहले उन्हें चाय पिलाओ. यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, क्या वो चाय पीते हैं? उत्तर है हाँ. तो इस तरह जब आप रिश्ता जोड़ोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो मूर्ति है, आपको लगेगा वो तो मेरे साथ है. और इसका मैं आपको अब आगे नहीं जा रहा, बस यहीं खत्म कर रहा हूं. कुछ एविडेंस देता हूं. देखो, इसको कहते हैं फेथ. और इसको मैं एविडेंस नहीं करूंगा. मीरा ने गंधर्व विवाह किससे किया था? कृष्ण से. और मीरा की कथाएं आप सबको मालूम. मैं रिपीट नहीं करूंगा. मैंने घड़ी देख लिया, टाइम कम बचा है, फिर भी मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आज. ये एग्री? इट्स ए क्वेश्चन ऑफ फेथ. और इसका मैं आपको एक लेटेस्ट एविडेंस दूंगा. आई गिव यू 30 सेकेंड्स टू रीड. पढ़ो, इसको पढ़ना जरूर. अब देखिए, ये तो सच्ची कहानी है.
कोई देखना चाहता है तो गुजरात चला जाए, इस मंदिर में जाके देख ले, घड़ी पहनी हुई है उन्होंने। तो ये क्या है? फेथ। ये एविडेंस है। अब इसको लोग मूर्ति मानेंगे तो मूर्ति का रूप मिलेगा, जीवित मानेंगे तो जीवित भी रूप मिलेगा। मुझे पूरी आशा है जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब ने कभी ना कभी बस में यात्रा की होगी। अब मैं आपका एक्सपीरियंस बताता हूं। आप बस में 2 सीटर में खिड़की की साइड में बैठे हो और आपकी दूसरी सीट खाली है। अगले बस स्टैंड पे एक और ह्यूमन बीइंग, मेल और फीमेल, कम्स एंड सिट्स नेक्स्ट टू यू। जब दूसरा यात्री आपके पास आके बैठता है तो आपके अंदर 3 रिएक्शंस होते हैं, 3 में से एक होगा। एक, यू इंस्टेंटली लाइक दैट पर्सन, नोइंगली और नॉन नोइंगली आप उसकी तरफ देखते हो, और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो बातें करनी शुरू कर देते, चाहे वो कोई भी हो, मेल या फीमेल, कोई फर्क नहीं। और दूसरा, यू इंस्टेंटली डिसलाइक दैट पर्सन, और आप सुकड़ते हो खिड़की की तरफ, उधर और जगह है ही नहीं, उसने एक शब्द नहीं बोला, उसने कोई बदतमीजी भी नहीं की, बट यू हैव डिसलाइक द पर्सन। और तीसरी परिस्थिति आती है, यू आर लॉस्ट इन योर ओन थॉट्स, एज इफ वहां कोई बैठा ही नहीं है। क्या ऐसा होता है? डू यू एग्री विद मी? दीज आर वन ऑफ द रिएक्शंस। अब मैं आपको इसके पीछे साइंस बताता हूं। ये हिडन पर्सनालिटी क्या है? अब मैं आपको जल्दी से स्लाइडें बताऊंगा और इसका उत्तर दूंगा। ये मैंने आपके साथ की बस की यात्रा। फिर मैंने आपको 3 चीजें बताई। हमारी जो इनविजिबल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है, इसको कहते हैं ऑरा। हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभा होती है, गोला होता है। इसकी रेडियस 6 इंच से लेकर 3000 फीट तक हो सकती है। एग्जाम्पल, आप लोगों ने बहुत सारे गैदरिंग देखी होंगी और रिलीजियस जगह पे आपके गुरु इतनी दूर खड़े हैं और एक आशीर्वाद देते हैं, और जो पीछे सबसे अंत में है उसे भी सुख मिलता है। His aura is so powerful. अब ये ऑरा बनता कैसे है? हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं। इन 7 चक्रों के 7 रंग हैं। स्पिरिचुअल, जब आप मेडिटेशन करते हो, आप यहां से यात्रा शुरू करते हो, बहुत कम इंसान इस धरती पे हैं जो यहां तक पहुंचते हैं। तो आप मेडिटेशनली किस स्थिति पे हो, उसी प्रकार का कॉकटेल ऑरा आपके बाहर होता है। मिक्स्ड कलर्स होते हैं, और वर्ल्ड में बहुत कम लोग हैं जो इसकी इंटरप्रिटेशन करके आपके विषय में सब कुछ बता सकते हैं। और फिर एक और चीज आपको सुन के खुशी होगी, ये जितने चक्रास हैं ये हमारे सब अंगों के साथ जुड़े हुए। तो हमारी जो शारीरिक अवस्था है, हमें किसी प्रकार का कोई रोग है, वो उस चक्र से रिलेटेड होती है और उसका कलर हमारे बाहर आता है। हम नेकेड आई से इस ऑरा को नहीं देख सकते। कैनन ने एक कैमरा डेवलप किया है जिसकी कॉस्ट है $3,799। इस कैमरा द्वारा हम सिर्फ ऑरा की पिक्चर दे सकते हैं। और वो पिक्चर्स कैसी होंगी, जरा दर्शन करो।
ये जो हिडन पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है, एक तो ये ऑरा हो गया। इसीलिए जब हम किसी इंसान से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, केवल एक दूसरे को देखा है, एक शब्द भी नहीं बोला, we instantly like that person. When our auras merge, या तीन स्थिति होती है, when two auras merge, either they attract or they repel or they are neutral. When they attract, we like a person. When they repel, we dislike a person. And when they are neutral, कोई फर्क नहीं पड़ता। आए हो तो सिर आंखों पे, जाते हो तो जाओ। तो ये बेटा हमारी हिडन पर्सनैलिटी है। दूसरा इसका एक और सुख है, अगर आपको अपने इष्ट देव पे इतना विश्वास है कि वो जीवित है, आपके साथ रहते हैं, और आप वो सारी बातें करते हो जो आप अपने एक परिचित के साथ करते हो, अपने संबंधी के साथ करते हो, आपको फिर वैसी फीलिंग्स मिलेंगी। यू विल नेवर फील लोनली। अंत में इतना कहूंगा कि हमारे जो पिछले जन्मों के कर्म है, उसका फल तो भुगतना पड़ेगा, वो तो भगवान भी नहीं मिटा सकता। हाँ, वो जब हमारे साथ होते हैं वो उन कष्टों को कांटा बना देते, इतना बड़ा कीमत है, और वो बड़ी सरलता से बीत जाते हैं। बिताना तो पड़ता, बट देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। सो दिस वाज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दैट इज ऑरा। और इसी के साथ ही I would like to say to all my participants a very big thank you for your participation throughout the entire program. सर कुछ क्वेश्चंस हैं। वैसे तो ये पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेशन रहा है, बट स्टिल एक दो क्वेश्चंस मैं लेना चाहूंगी। सर, कुछ पर्सनालिटीज जो है अपने पर्सनल फ्रंट पर बहुत कोऑपरेटिव और अंडरस्टैंडिंग होती हैं, बट प्रोफेशनल लाइफ में नहीं होती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि प्रोफेशनल लाइफ में भी वो जो पर्सनल लाइफ में है बिल्कुल वैसे ही बने? देखो, ऐसा है मंजू जी, प्रोफेशनल लाइफ में हमें हर प्रकार के लोग मिलते हैं। जैसा हमने बताया था डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी, कुछ लोग तो मैं जो कह रहा हूँ करो, ये डिसीजन हो गया, दुनिया कहती है कहने दो, और कुछ बड़े सेंसिटिव होते हैं। वो उसने जिससे बात कर रहा है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा और दुखी हो गया। सिंस ऑल ऑफ अस आर यूनिक पर्सनैलिटीज इन आवरसेल्व्स, तो समय और स्थिति के अनुसार हमें बदलना पड़ेगा। दुखी होने की बजाय, मान लो यू आर माई सीनियर, आपने कोई ऐसी बात कह दी जिससे मेरा मन दुख गया, और वो बात मैं अपने तक ही सीमित रखता हूँ और दुखी होता रहता हूँ। दूसरा तरीका है, मैंने हिम्मत जताई, मैंने कहा मैडम एक बात पूछूं? कहता पूछो। क्या आपने ये बात कही है मेरा मन दुखाने के लिए या मुझे इंप्रूव करने के लिए? तो आप कहते हो ना, ये मैंने तो तेरा दिन नहीं दुखाया बेटा, ये तेरे फायदे के लिए है, प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट के लिए। खत्म हो गई बात, के नहीं हो गई। इसका मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लाइक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ विशिंग पीपल ऑन देयर बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज। मान लो आज मेरा जन्मदिन है, मेरा घनिष्ठ मित्र सुबह से 4 घंटे के साथ मेरे साथ है, और उसने मुझे जन्मदिन विश ही नहीं किया। अब मेरे पेट में गैस बन रही है, यार ये कैसा आदमी है, मेरा जिगरी दोस्त है, मैं सब कुछ करता हूँ, मेरा विश ही नहीं करता, ये कैसा दोस्त है। नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि नहीं? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, मैंने उसका कॉलर पकड़ा और एक छोटी सी गाली भी दी। ओ उल्लू के पट्टे, आज मेरा जन्मदिन है, विश तो कर दे। ओहो, बात खत्म हो गई कि नहीं? तो वो गांठ खत्म हो गई कि नहीं हो गई? सो इट डिपेंड करता है हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन। अगर एक इंसान बेसिकली कोऑपरेटिव है, हो सकता है उसने पर्सोना, मुखौटा डिफरेंट पहन लिया हो,
अंदर से उसे डर लगता हो कि यार मैं वीक हूं बट आई विल एक्ट स्ट्रांग, क्या पता, हाउ डू यू नो। तो मैं इतना कहूंगा, व्हेन दो चीजें याद रखना, वन, नेवर थिंक यू आर स्मार्टर देन योर बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट, ये रूल नंबर 1। कभी मत समझना इससे मैं चतुर हूं, ये गलतियां मैंने की हुई हैं, सच्ची बता रहा हूं। इस गधे को किसने बॉस बना दिया, इससे अच्छा तो मैं कर लेता। पर एक्चुअली अब मेरे को समझ आता है, जब मैं इन शब्दों का प्रयोग करता था, आई वॉज नॉट क्रिटिसाइजिंग माई बॉस, आई वॉज चैलेंजिंग दी कैपेबिलिटी ऑफ सीनियर्स हु प्रमोटेड हिम। ऊपर वाले गधे हैं, एक गधे को और बॉस बना दिया, और मैं उन्हीं गधों को कहता हूं मुझे भी बॉस बना दे। आई एम रॉन्ग और नॉट? So never think you're smarter than your boss. दूसरा, be always on the right side of your boss. मैं ये नहीं कह रहा चमचागिरी करना, फर्क है। राइट साइड का मतलब प्रोफेशनली बी विद हिम एंड कीप ऑन प्रोग्रेसिंग। जब आपके ये 3 नियम होंगे, बॉस इज ऑलवेज राइट, बी ऑन द राइट साइड ऑफ योर बॉस, be one of the best in which field you are, and your fourth motive is to progress. उसका मैं एक टेक्निक बता देता हूँ, प्रोग्रेस कैसे करते हैं। सपोजिंग आप कैपेबल हो, जिस कंपनी पे हो यहाँ प्रोग्रेस नहीं मिल रही, दूसरी कंपनी में अपॉर्चुनिटी है, चले जाओ। नेवर गेट इमोशनली अटैच्ड विद द कंपनी। ये 4 नियम। सर एक और क्वेश्चन है, sometimes we have seen people, थोड़ा ऊंचा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। so sometimes people have inferiority complex, और ये उनका ये inferiority complex कहीं ना कहीं बाकियों को अफेक्ट करता है, तो देखो, कैसे उन्हें बताएं कि ये inferiority complex उनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना। अब देखो, मैं अपने बॉस को करेक्ट तो कर नहीं सकता कि साहब आपके पास तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप उनको हमेशा अप्रिशिएट करोगे, कहोगे ये बहुत अच्छे हैं, तो धीरे धीरे उनका कॉम्प्लेक्स दूर हो जाएगा। एम आई राइट? तो कभी कभी हमें ये शर्म आती है, और सर मैं तो यहाँ का हूँ। अब सारी दुनिया मोदी जी को चाय वाला कहती है, क्या वो चाय वाला बन गए? नो। बहुत सारे लोग हैं जो कल तक कुछ भी नहीं थे, एंड टुडे दे आर एट द पिनाकल, दे आर नॉट स्कैर्ड। तो कोई बात नहीं, उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये हमारा सोच है, हो सकता है उनका सोच ना हो। तो समय और स्थिति के अनुसार वही रूल, यू आर ऑलवेज राइट, बट आई हैव माई एक्सप्रेशन, कैन आई शेयर माई थॉट्स, उससे प्रॉब्लम सॉल्व। एग्री टू डिसएग्री। सर एक पार्टिसिपेंट है जो पूछ रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि फील्ड में जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो फ्रेशर्स को प्रायोरिटी नहीं मिलता है, दे नीड एक्सपीरियंस पीपल, तो क्या किया जाए? उसका कारण ये होता है बेटा, 2 प्रकार के सीनियर्स होते हैं। एक तो बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द वर्क, क्योंकि सीनियर्स को वो क्यों बेनिफिट देते हैं कि भाई इससे काम पूरा हो जाएगा, बट साथ के साथ दे ऑल्सो गिव अपॉर्चुनिटी टू जूनियर्स। बट जूनियर को शो करना पड़ेगा कि सर मुझे काम आता है, मेरे पास ज्ञान भी है, एक दफा सेवा का मौका दे के तो देखो। बट सपोजिंग यू आर नॉट, नाइदर यू आर प्रोएक्टिव और यू आर, तुम मीटिंग में भी चुपचाप बैठे रहते हो, कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई अपने आइडियाज नहीं देते, कोई इंथुजियाज्म शो नहीं करते। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं जूनियर हूं, मेरी ड्यूटी है 10 से 5 बजे अपना खाना उठाता हूं, बॉक्स चला देता हूं, और जो सीनियर्स है वो 4-4 घंटे बाद में भी काम करते रहते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में अगर आपको जाने की जल्दी नहीं है, सीखने के इच्छुक हो, तो आप जाके, एक मैंने शब्द पता नहीं याद है किया था आपके साथ में, आई, वी एंड यू शब्द का प्रयोग करें। सर, will you become my mentor? Will you groom me that I become as good as you are? जब आपने दूसरों को गुरु बना दिया तो फिर आपको क्यों नहीं ट्रेन करेंगे?
पर यहाँ पे आई की हत्या करनी पड़ती है, अपने आप को मारना पड़ता है, आई नहीं है। जैसे गुरु के पास एक शिष्य गया, पहला प्रश्न शिष्य गुरु ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहता जिस नाम से आप बुलाओगे वही मेरा नाम है। उसने अपनी एग्जिस्टेंस पूरी खत्म कर दी, तो गुरु क्या नहीं सिखाएगा उसको। अगर ईगो लेके जाओ, मैं तो कॉन्वेंट स्कूल के आया हूँ, मेरा बाप मर्सिडीज में मुझे छुड़वाता है, ये तो मेट्रो से आता है, इसके से हमें क्या सिखाएगा? ये नहीं सीखो। So this is the work environment is totally different than personal environment, and there is always scope to improve your personality. Identify your areas of improvement, not weaknesses. I call them areas of improvement. Keep on improving, and automatically you will be recognized. विश्व युवक केंद्र अदिति महाविद्यालय और सारे पार्टिसिपेंट की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी साथ जर्नी के लिए। और आपको हम धन्यवाद देंगे। एक रीत होती है किसी प्रोग्राम की, बट हाँ एक उम्मीद भी करेंगे कि आपकी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ ऐसे बनी रहे सर, आपकी इस जर्नी के लिए, आपको सिखाने के लिए। और सारे जितना आज भी आपने बहुत सारी चीजों की बात करी जो क्वेश्चन आंसर के साथ आया, लेकिन कुछ चीजें ऐसे थे, पार्टिसिपेंट एक थे विश्वजीत जी थे, जब हम गॉड की बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि गॉड हमें आप में भी दिखता है सर, वो सच है। बोलते हैं कि गुरु गोविंद हो खड़े काके लागो पाए, बलहारी गुरु आपके गोविंद देव बताए। तो वो सारी चीजें सर हमें दिखी, और हमारे साथ जर्नी करने के लिए सर हम पूरे पार्टिसिपेंट के तरफ से, विश्व युवा केंद्र की तरफ से, अदिति महाविद्यालय की पूरी टीम की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारी प्रोफेसर ममता मैम का, और जो कि प्रिंसिपल है अदिति महाविद्यालय की, हमारे चीफ कंट्रोलर श्री उदय शंकर सिंह सर। आपके लीडरशिप में सर ये हमारा जो 15वां सेशन है चल रहा है, और आपका लीडरशिप, आप दोनों लोग का लीडरशिप, मोटिवेशन और गाइडेंस हमेशा हमारे साथ होता है सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी कोऑर्डिनेशन टीम का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसमें हमारे कलीग अजीत सर हैं, सुनीता बेहमानी मैम हैं, डॉक्टर मंजू गोयल मैम हैं, मनीषा पॉल मैम हैं, मिस मुक्ता भारद्वाज मैम हैं, मिस अपूर्वा मैम हैं, और राकेश सिंह सर हैं, और हमारी पूरे BYK अदिति महाविद्यालय की टीम का जो इतने सपोर्ट करते हैं हर एक चीज को लेकर, कोई भी चीज हो उसका शेयरिंग से लेकर कंसेप्चुअलाइजेशन, कोई भी डिजाइन को लेकर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं सारे अपने पार्टिसिपेंट का, अब ये पूरे 4 महीने की जर्नी हमारे साथ रहे, आप पार्टिसिपेट नहीं हैं, भले आपको नहीं देख पाते, लेकिन ये मान के चलिए कि हम एक साथ जुड़े हुए एक फैमिली के जैसे हैं। ऐसे ही भले 7 मई को प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन लर्निंग का एटीट्यूड बनाए रखें, तो ऐसे हम जुड़े रहें, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी पोर्टल पे हम जरूर जुड़े रहें। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.